Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you Motor Vehicle Act 1988, and in that today we will start with the new chapter, chapter 13, that is relating to offences, penalties and procedure. In that we will discuss certain penalties and their punishments for the offence or any wrongful act which has been committed by the owner of the vehicle or any other person in this under this act. तो इसमें जो भी पेनल्टीज और ऑफेंसेस है उनको डिस्क्राइब किया गया है और उनसे रिलेटेड जो भी पनिशमेंट्स हैं वो प्रोवाइडेड है चैप्टर 13 में. सो लेट्स स्टार्ट. Section 177 General Provision for Punishment. Now Section 177 provides for the general provision for punishment in the cases where if no penalty is provided or no punishment is provided anywhere in this act, then in that case such wrongful act or offence will be shall be punished under Section 177, and for that if the offence has been committed for the first time, then in that case the fine is charged up to rupees 100, means fine will be imposed up to rupees 100. 100 रुपये से ज़्यादा का फाइन चार्ज नहीं होगा. And if this the offence has been committed subsequently, like second or more than 2 or more than 2, then in that case the fine will exceed up to rupees 300. Then in that case fine will be imposed up to rupees 300. So that was section 177. Now section 179. So before moving on this section, I am telling that we are discussing only the important sections in offences, penalties and procedure, because it's a lengthy chapter and so the important sections only are discussed here. So let's start with section 179. Disobedience of orders, obstruction and refusal of information. Means कोई भी order, रेगुलेशन या कोई भी नोटिफिकेशन जो कोई अथॉरिटी पास करती है जो अथॉराइज्ड है मोटर व्हीकल एक्ट में, कोई रेगुलेशन ऑर्डर या नोटिफिकेशन इशू करने के लिए एंड उसका डिसोबे होता है या उसका रेफ्यूज़ल होता है फॉलो करने से, देन इन दैट केस और उसकी जो पेनल्टी है या पनिशमेंट है वो और कहीं प्रोवाइडेड नहीं है उस एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में, देन इन दैट केस सच एक्ट और ऑफेंस शैल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 179. एंड for this in case no penalty provided anywhere under this act, then in that case fine up to rupees 500, means fine which extend to rupees 500 shall be imposed only under this act for disobedience or for disobeying or for refusal to follow the instructions, orders or notifications issued by the authorized authority under the Motor Vehicle Act. Now second is in that withholds or gives false information. Now if any person has been asked to provide information and such person provides false or withholds information, then in that case such person shall be imprisoned for up to 1 month, and fine shall be imposed up to rupees 500. That is, fine shall not be exceed rupees 500 and imprisonment may be imposed for नॉट एक्सीडिंग 1 month. 1 month से ज़्यादा की उस पर इम्प्रिजनमेंट नहीं लगेगी, और बोथ और दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इफ़ द पेनल्टी है और जो पनिशमेंट है वो और कहीं प्रोवाइडेड नहीं है अंडर दिस एक्ट, then in that case such person shall be charged under this 179. Now section 180 allowing unauthorized person to drive motor vehicle. Now if the owner of the vehicle or the person in charge of the motor vehicle authorize other person to drive such motor vehicle who does not qualify the conditions of section 3 or section 4, means he contravenes the provision of section 3 or 4, then in that case the owner or the in charge of the vehicle shall be imposed with the fine up to rupees 1000 or imprisonment extend to up to 3 months और बोथ, मीन्स उसको इम्प्रिजन में भी दे सकते हैं, वो जो जिसका पीरियड होगा वो 3 months से ज़्यादा नहीं होगा, और फाइन कैन बी इम्पोज्ड द अमाउंट ऑफ फाइन शुड नॉट एक्सीड रुपीज़ 1000 और बोथ. तो दोनों भी प्रोवाइड की जा सकती है उस केस में. नाउ सेक्शन 182, दैट इज सेक्शन 182 offenses relating to licenses.
नाउ समटाइम्स क्या होता है, कोई पर्सन ऑथराइज नहीं है लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, या फिर वो ऑब्टेन करने की कोशिश करता है लाइसेंस जो कि वो लीगली एंटाइटल नहीं है ऑब्टेन करने के लिए लाइसेंस, देन इन दैट केस सच पर्सन इज लाइबल फॉर पनिशमेंट, वो पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा। तो उस केस में जो उसका इम्प्रिजनमेंट का पीरियड होगा वो एक्सीड नहीं करेगा 3 मंथ से ज़्यादा, और उसके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है अप टू ₹500, और बोथ पनिशमेंट में बी प्रोवाइडेड टू सच पर्सन, मतलब उसको इम्प्रिजमेंट हो सकता है 3 मंथ्स का, या फिर फाइन अप टू ₹500, मतलब 500 से ज़्यादा का फाइन उस पर इम्पोज नहीं कर सकते, और दोनों मतलब फाइन और इम्प्रिजन दोनों भी इम्पोज किया जा सकता है। प्लस लाइसेंस ऑब्टेन्ड शैल हैव नो इफेक्ट, अगर उसने उस ड्यूरेशन में लाइसेंस ऑब्टेन कर लिया था तो अब उसका वो जो लाइसेंस है वो रद्द हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो अब इसमें सेकेंड जो है कंडीशन है वो प्रोवाइड करता है कंडक्टर्स लाइसेंस के केस में। अगर कोई पर्सन है जो कि कंडक्टर्स लाइसेंस ऑब्टेन करता है जो कि वो ऑथराइज नहीं है या disqualified है to obtain such license, then such person shall be imprisoned up to 1 month, उसको imprisonment मिल सकती है up to 1 month, और फाइन कैन बी इम्पोज नॉट एक्सीडिंग टू ₹100 से ज़्यादा उसके ऊपर फाइन इम्पोज नहीं कर सकते, और बोथ या दोनों जो पनिशमेंट है वो उस पर चार्ज कर सकते हैं, नाउ इम्पोज कर सकते हैं, सॉरी। नाउ सेक्शन 183 ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड एक्सेट्रा, and if any person who drives a motor vehicle infringing the provisions of section 112 जिसमें प्रोवाइड करी गई है लिमिट स्पेसिफाइड है, उस लिमिट से अगर कोई ज़्यादा एक्सीड करके कोई व्हीकल ड्राइव करता है तो उस केस में वो पर्सन लाइबल है फॉर पनिशमेंट, वो पनिशमेंट के लिए लाइबल है। तो सेक्शन 183 प्रोवाइड करता है कि अगर कोई पर्सन एक्सेसिव स्पीड से कोई व्हीकल चला रहा है तो उस केस में क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करी जाएगी। तो इसमें ये प्रोवाइडेड है, तो फर्स्ट जो अगर उसने फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस कमिट किया है एक्सेसिव स्पीड का तो उस केस में उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है अप टू ₹400, मतलब फाइन कैन बी इम्पोज नॉट एक्सीडिंग अमाउंट ऑफ ₹400 से ज़्यादा उसके ऊपर फाइन इम्पोज नहीं कर सकते इन केस ऑफ फर्स्ट ऑफेंस। नाउ इन द सेकेंड और मोर ऑफेंसेस हैज बीन कमिटेड बाय सच पर्सन, अब उस पर्सन ने सेकंड और सब्सिक्वेंटली ऑफेंसेस कमिट किया है सेम सेक्शन में, तो उस केस में उसके ऊपर फाइन इम्पोज हो जाएगा ऑफ अमाउंट ₹1000 एंड नॉट एक्सीडिंग दैट, इस अमाउंट से ज़्यादा का उस पर फाइन इम्पोज नहीं कर सकते। नाउ एम्प्लॉयर डायरेक्ट एम्प्लॉय, अब इसमें सेकंड कंडीशन ये है, अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट करता है या उसको कॉज करता है कि वो ड्राइव करे व्हीकल जो एक्सीडिंग लिमिट है अंडर सेक्शन 112 उससे ज़्यादा की स्पीड से, तो उस केस में जो है वो लाइबिलिटी कैसे अराइज होगी। तो उसमें केस में है अगर फर्स्ट ऑफेंस कमिट किया है तो फाइन अप टू ₹300, फाइन जो एक्सटेंड होगा अप टू ₹300, उससे ज़्यादा का फाइन इम्पोज नहीं कर सकते, और सेकेंड और सब्सिक्वेंटली सेम ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड by such person, then in that case fine can extend up to ₹500 फाइन जो है उस पर इम्पोज किया जा सकता है। So that was about section 183 driving at excessive speed. Now section 184 driving dangerously, अगर कोई पर्सन जो व्हीकल ड्राइव करता है डेंजरसली इन अ पब्लिक प्लेस, और वो ऐसी कंडीशंस जो नेचर है पब्लिक प्लेस का वो ऐसा है भीड़ भाड़ वाला एरिया है, या फिर उसका वहाँ पे अलाउड नहीं है एक्सेसिव ड्राइविंग के लिए, या वो बहुत रैशलेस तरीके से जो है वो ड्राइव करता है व्हीकल को, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइड है 184 में कि वो ड्राइविंग बहुत डेंजरसली कर रहा है जिससे पब्लिक हार्म हो सकता है, पब्लिक सेफ्टी को मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में जो सेक्शन 184 वो उसमें पेनल्टी प्रोवाइड करता है फॉर सच ऑफेंसेस। एंड फॉर फर्स्ट ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट कैन एक्सटेंड अप टू 6 मंथ्स, उस पर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की, और फाइन अप टू ₹1000, मतलब फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है नॉट एक्सटेंडिंग द अमाउंट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ ₹1000 से ज़्यादा का अमाउंट पे उसका जो फाइन है उस पर इम्पोज नहीं किया जा सकता। और सच पर्सन कमिट्स सेकेंड और मोर और सिमिलर ऑफेंस, ये सेम जो ऑफेंस है वो सिमिलर करता है फर्दर फर्स्ट ऑफेंस के बाद विद इन द स्पैन ऑफ 3 years,
3 साल के अंदर वो सेम ऑफेंस रिपीट करता है तो उस केस में जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड कर जाएगी 2 ईयर्स के लिए। मतलब पहले 6 मंथ्स थी, अब उसने 3 साल के अंदर में सेकेंड टाइम या उससे ज़्यादा बार वही सेम ऑफेंस रिपीट किया है तो अब उसकी इम्प्रिजनमेंट 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड हो सकती है। और फाइन में एक्सटेंड अप टू ₹2000 और जो फाइन है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा 2000 रुपीज़ से रुपीज़ तक, उससे ज़्यादा का नहीं, या फिर दोनों जो पनिशमेंट है वो उस पर इम्पोज कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 185, ड्राइविंग बाय ड्रंकन पर्सन और बाय पर्सन इन्फ्लुएंस बाय ड्रग्स। अगर कोई पर्सन जो ड्रिंक करके और जो ड्रग्स लेकर ड्राइव कर रहा है मोटर व्हीकल तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगी। तो उसमें यह कहा गया है कि अगर ब्लड 30 mg जो मिलीग्राम है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर अगर अल्कोहल पाया जाता है बाय द ब्रेथ एनालाइजर, जो पुलिस जो ब्रेथ एनालाइज करके जो मतलब देखती है कि उसमें कितना अल्कोहल है, उसकी क्वांटिटी कितनी है अल्कोहल की जो पर्सन ड्राइव कर रहा है उसकी, अगर वो 30 मिलीग्राम से मतलब पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में अगर वो ज़्यादा होती है क्वांटिटी तो उस केस में वो पर्सन अट्रैक्ट करता है पेनल्टी को। और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स सो मच दैट व्हीकल इज अनेबल टू बी कंट्रोल, और वो ड्रग्स लेकर ड्राइव कर रहा है व्हीकल की उस ऐसी कंडीशन में कि वो उससे व्हीकल संभल ही नहीं रहा है, तो इन 2 कंडीशंस में वो पर्सन लाइबल है पनिशमेंट के लिए। ठीक है, तो उसमें पनिशमेंट है फर्स्ट ऑफेंस है तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने की और फाइन कैन बी इम्पोज अप टू ₹2000 और बोथ। मतलब अगर उसने फर्स्ट टाइम अगर वो ड्रिंक करके या ड्रग्स लेके ड्राइव कर रहा है व्हीकल तो उस केस में जो उसकी पनिशमेंट है फर्स्ट ऑफेंस की वो है अप टू 6 मंथ्स की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर फाइन में भी इम्पोज्ड अप टू ₹2000 के अमाउंट से ज़्यादा उसको फाइन इम्पोज नहीं होगा, सिर्फ 2000 तक का अमाउंट तक का आप फाइन इम्पोज कर सकते हो, या फिर बोथ दोनों पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं और इम्प्रिजन भी कर सकते हैं प्लस उसको फाइन भी इम्पोज कर सकते हो उसके ऊपर। नाउ अगर वही ऑफेंस वो दूसरी बार या उससे ज़्यादा बार कमिट करता है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 3 साल के अंदर में वो यही सेम ऑफेंस रिपीट करता है तो उस केस में उसकी पनिशमेंट इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, इम्प्रिजमेंट जो बढ़कर 2 साल हो जाएगी और फाइन भी जो अमाउंट है फाइन की अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी अप टू ₹3000 तक उस पर इम्पोज किया जा सकता है फाइन भी, और जो इम्प्रिजमेंट है वो भी 2 ईयर्स तक उस पर इम्पोज करी जा सकती है, या फिर दोनों और बोथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, जिसमें हमने सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस किए हैं, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिमेनिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर 13। थैंक यू। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.